Alright, children, now we're going to study about the role of women in the French Revolution. तो जो विमेन थे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंटायर फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो हमेशा आगे रहे, पूरे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया. दे वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट्स. बट उनको जो उनकी डिमांड्स थी वो इस रेवोल्यूशन में पूरी नहीं हुई. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जो रॉयल्टी और नोबेलिटी वाले विमेन थे, फ्रॉम द किंग्स एंड द रिच नोबल्स, उनमें जो थे उनके पास तो फिर भी राइट्स थे, वो एजुकेशन ले सकती थी और अदरवाइज ऑल्सो दे हैड एन मच बेटर लाइफ बिकॉज दे वर फ्रॉम द रिच क्लास. बट जो लाइफ असल में बहुत डिफ़िकल्ट थी वो थी थर्ड स्टेट की वेमेन के लिए. उसमें भी वो पुअर वेमेन जो थे और बाकी सब के भी, बट स्पेशली फॉर द पुअर वेमेन. उसमें क्या था, एक तो उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जा सकती थी, कोई जॉब अगर वो करना चाहें तो वो लोग उसके लिए ट्रेनिंग नहीं ले सकते थे. एंड दे ड्यूरिंग दोज वॉर ईयर्स, जब वॉर हुआ था वो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया पे, तब उनको they had to take care of the homes as well as go and make a living for their families. And despite all these things, they had no equal pay. They are taking active part in the revolution. They are managing homes, they are managing the jobs, but there is no equal pay. So what happened? The women realized that they were disorganized. So while the political clubs were being formed, they also formed their own women clubs where they could come together, organize their demands, discuss their situation. And two of these prominent political clubs were the Society of Revolutionaries and the second was Republican Women. So coming together in these clubs, they were able to organize their demands. So what were their demands? We're going to talk of three demands here. One was right to vote, second, the right to get elected, and third, the right to political office. But children, during this revolution, none of these demands they become fulfilled, they don't get accepted. In fact, it is only in the year 1946, 157 years later almost, that women get the right to vote. Now let us have a small exercise of comparison what the situation has been in our country, in India. We got independence in 1947, and as soon as we got independence, we had the universal adult franchise which was put in place. इसका मतलब क्या होता है? Without any discrimination on the basis of gender, caste, religion, creed, anything, all the people who are above 18 years of age, all the citizens who are above 18 years of age, they get a right to vote. लेकिन फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, जिसमें रेवोल्यूशन इतना जल्दी आया, in the 18th century itself, they are not able to give the right to vote to their women. Okay, so we must be very proud of our country. हम लोगों का तो सारा ये फ्रीडम मूवमेंट ही वॉज प्रोमिनेंट टूवर्ड्स द 20th century and latter half of the 19th century. But still we were very much clued in, और हमने बिल्कुल शुरू से ही सबको राइट टू वोट दिया है. So if they were not able to meet these demands, coming back to the French Revolution, so if they were not able to meet these demands, then what actually changed for these women after the French Revolution? इनको इस revolution से मिला क्या, क्या फ़ायदा हुआ इन्हें? So here I am going to give you a few points. सबसे पहला तो there were certain laws that were made to help improve their life. वो क्या क्या थे? एक तो state schools create हुए जिसमें अब women जाके they could गर्ल्स को जो है एजुकेशन दी जा सकती थी, एंड स्कूलिंग उनके लिए कंपल्सरी कर दी गई फॉर गर्ल्स. ऑल्सो दे वर गिवन फ्रीडम इन मैरिज. अगर उनकी मर्जी है दे कैन गेट मैरिड, दे कुड नॉट बी फोर्स टू गेट मैरिड, एंड मैरिज वॉज नाउ कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें दोनों पार्टीज़ जो होती हैं, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही होती हैं, उनके राइट्स होते हैं. सो सिमिलरली सर्टन राइट्स केम फॉर विमेन. और तीसरी चीज़ क्या थी?
The divorce that was made legal, otherwise they had to be stuck in that relationship, so divorce was made legal and both men as well as women could ask for divorce. And fourth, the most important point that was there, अब गर्ल्स को ट्रेनिंग, दे कुड टेक ट्रेनिंग फॉर जॉब्स, अगर उनको अपना स्किल सेट डेवलप करना है, अगर उनको कोई ट्रेड सीखना है तो वो कर सकते थे. एंड दे कुड इवन बिकम आर्टिस्ट एंड दे कुड ओपन अप स्मॉल बिजनेसेस. So this was the achievement for women in the French Revolution. Now we are going to talk about one more important personality, Olympe de Gouges. So इनका क्या था? She was a revolutionary, she was a political activist, ये playwriter थी, ये plays लिखती थी. And she was not happy with the declaration of rights of man and citizen, क्योंकि उसमें उन्होंने women को क्या किया था, उनके बारे में बात ही नहीं की थी. They had only talked about men. So what she did in 1971, she gave a counter to that declaration and called it the Declaration of Women and Citizens. And she was a frequent speaker against the policies of the government. And उससे क्या हुआ, 1793 में when she criticized the Jacobean government for closing down the women clubs, उनको क्या हुआ, she was charged with treason. What is treason? Treason is doing an activity which is against your country, your state. और उसी में because Jacobians were actively executing their political opponents, तो उसमें उनको भी जो है 1793 में she was also executed. And execution का method you all know, it was the guillotine. Alright children, now we are going to talk about the penultimate topic, which is abolition of slavery. जेकोबियंस ने जो है बहुत सारे बुरे काम किए थे. दे हैड अ रेन ऑफ टेरर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा था, एग्जीक्यूशंस करी थी. बट उन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया था, एंड दैट वाज अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी क्या थी? ये एक ट्रेड था टू बाय पीपल टू वर्क इन प्लांटेशंस या जो भी कॉलोनीज़ जो ये डेवलप कंट्रीज़ की थी, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ की थी, उसमें काम करने के लिए अफ्रीका से जो है लोग खरीद के लाए जाते थे. तो ये ट्रेड क्या होता था? दिस ट्रेड हैपन इन अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर इंगेजमेंट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे. इट्स यूज टू स्टार्ट फ्रॉम अफ्रीका. यूरोप से जो है फ्रांस से लोग जाते थे अफ्रीका, वहाँ से ट्रेड करते थे, स्लेव्स खरीदते थे, फिर उसको अमेरिका भी सप्लाई करते थे. एंड देन दे यूज टू गिव स्लेव्स, टेक स्लेव्स बैक टू फ्रांस ऑल्सो. तो इसमें जो मेजर सिटी थी वो थी द सिटी ऑफ बोर्डियो और नैंस, जो ये नाम ग्रीन में यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं. दीज वो पोर्ट सिटीज़. पोर्ट सिटीज़ क्या होती हैं? वो सिटीज़ जो सी के साथ सिचुएटेड होती हैं, जहाँ पे शिप्स आती हैं. सो दिस slave trade had started in the 17th century itself. और ये स्लेव ट्रेड में होता क्या था? फैमिली, अफ्रीका से जो है लोगों को बाय किया जाता था, वो अपनी फैमिली से अलग हो जाते थे और फिर उनको बड़े इनह्यूमेन कंडीशंस में रखा जाता था. उनके कोई राइट्स नहीं होते थे, बस उनसे काम कराया जाता था और उनको बहुत ही बुरी हालत होती थी स्लेव्स की. ऊपर से इनको जो है एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म से बुलाया जाता था, विच वॉज द कॉल्ड द नीग्रोज. दे वर कॉल्ड द नीग्रोज. एक बहुत ही रेसिस्ट टर्म है, वी डोंट यूज़ इट एनी मोर. और ये वर्कर्स को कहाँ भेजा जाता था, स्लेव्स को कहाँ भेजा जाता था? प्लांटेशंस में. यूरोपियंस जो है वो जाकर बाहर काम नहीं करना चाहते थे, उन्हें डर लगता था. दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ गोइंग टू अदर प्लेसेस एंड वर्किंग. तो ये जो स्लेव्स हैं ये यहाँ से अफ्रीका से ले जाए जाते थे, यूरोप भी और अमेरिका भी. तो अब जो था ये जो प्लांटेशंस हैं वो भी क्या होती हैं? प्लांटेशंस किसी भी क्रॉप को, चाहे वो ट्री हो चाहे वो प्लांट हो, एक तरीके की क्रॉप को जब हम स्ट्रेट लाइन में ग्रो करते हैं ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर ट्रेड, सो दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन. ये किस किस की हो सकती हैं? बनानास, टी, कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो, एनी टाइप ऑफ प्लांट. ये वुड के लिए भी की जा सकती है. एक सिंगल रो में हम ट्रीज़ को लगा के फिर उनको फार्म करते हैं. तो अभी 1794 में अबॉलिश कर दिया जाता है, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप. बट अनफॉर्चुनेटली 1804 में 10 ईयर्स लेटर नेपोलियन जो है इसे दोबारा शुरू कर देते हैं.
एंड फाइनली देखो टाइटल के साथ मैंने लिखा है, जहाँ ब्लू से अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लिखा हुआ है, 1831 में इसको अबॉलिश किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लेवरी. सो इन द political aspects, we see that the biggest contribution of the French Revolution, or the biggest impact of the French Revolution, was the political ideas, these strong ideas that come from the French Revolution. इसमें क्या था, सबसे पहले 1789 में वी सी कि एक ओल्ड रिजीम होती थी. तो जो बास्टाइल प्रिजन स्टॉर्म हुआ था वो कब हुआ था, 1789 में. तो जब बास्टाइल प्रिजन स्टॉर्म हो गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज जो हुआ वो था अबॉलिशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप. ये क्या होता था, ओल्ड रिजीम में कोई भी प्ले अगर लिखा जाना है या बुक लिखी जानी है या कोई ड्रामा बनना है तो उसके लिए पहले किंग की परमिशन चाहिए होती थी. तो अगर वो किंग के अगेंस्ट है या उसके लिए अच्छा नहीं है तो उसको परमिशन नहीं मिलती थी. ये चीज़ जो थी प्रेस सेंसरशिप, ये अब ख़त्म हो जाती है और इसी से जो है फिलोसोफर्स के नए आइडियाज़ सर्कुलेट होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं और पॉपुलर भी होते हैं. इसके अलावा क्या था, नेचुरल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं. 3 नेचुरल राइट्स विच पीपल गॉट. इससे पहले तो माना जाता था कि किंग इज़ डिवाइन ओल्ड रिजीम में. अब क्या था कि जो पॉपुलेशन है, मासेस हैं, उनके भी राइट्स हैं और उनको क्या बोला जाता था, नेचुरल राइट्स. और 3 मेन राइट्स थे जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में हमने देखा है दिए गए थे. कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, ये वही है प्रेस सेंसरशिप के बाद जो आया है. एंड थर्ड वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो वी गेट फ्रीडम, वी गेट इक्वालिटी और प्रेस सेंसरशिप भी ख़त्म हो जाती है. तो ये इन तीनों राइट्स पे क्या था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी था. 1791 में फ्रांस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है और 1789 में अमेरिका ने भी इन्हीं वैल्यूज़ के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी थी. और याद करो ये वही है जब लुई 16 ने अमेरिका के साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर अमेरिका. लिटिल डिड ही नो दैट ऑल दिस इज गोइंग टू कम बैक एंड बाइट हिम ओनली. देन नेक्स्ट जो आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं, डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स. तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा वोटिंग मिलने लग जा, वोटिंग वाला जो है सिस्टम, उसको रेगुलेट किया जाता है. ईच मेंबर नाउ, ईच सिटीजन नाउ गेट्स द राइट टू वोट. हालांकि विमेन को नहीं मिलती है 1946 तक, बट देन स्टेट से चेंज होके अब लोग वोटिंग करने लग गए हैं. देन रिपब्लिक. व्हाट इज़ रिपब्लिक, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. रिपब्लिक क्या होता है, व्हेन द लीडर्स आर नॉट हेरिडिटरी, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो फ्रांस में वो सिस्टम भी आ गया है. एंड उसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियाज़ भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलते हैं. हाउ पीपल हैड वॉलंटियर्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट मोनार्की ड्यूरिंग दैट वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. तो ऑल दीज वर द आइडियाज़ विच केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. और ये जो आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म है ये आगे जाके बहुत सारी कंट्रीज़ को इंस्पायर करता है. इनफैक्ट इवन इन आवर ओन कंट्री अ वेरी मेजर सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th century, राजा राम मोहन रॉय वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेजर चेंज आता है बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज द अटेम्प्ट टू अबॉलिश स्लेवरी, जो उन्होंने 1794 में जैकोबियंस ने करने की कोशिश की थी. सो ऑल दिस इज द लेगेसी ऑफ द और इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इट शोड लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़ टू दी वर्ल्ड, जो कि सब्सिक्वेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ इनको अडॉप्ट करती हैं. और ये शुरू कहाँ से हुए थे, इट हैड स्टार्टेड विद दैट अमेरिकन एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस.